Okay, students, chapter 5 closes. Let's learn clauses. A clause is a group of words that contains a subject and a finite verb. क्लोज वो होता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ओके, जिसके अंदर सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब पाया जाता है. फॉर एग्जांपल, विक्रम स्टॉप्ड, शी sang, he slept. Let's learn kinds of clauses. There are two kinds of clauses: independent or principal or main clause, dependent or subordinate clause. An independent clause could be a sentence by itself or a part of a bigger sentence. Independent clause को वो इंडिपेंडेंट क्लोज कुड बी ए सेंटेंस बाय इटसेल्फ. इंडिपेंडेंट क्लोज अपने 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 अंदर ही खुद ही एक सेंटेंस होता है या फिर एक बड़े बिगर सेंटेंस का पार्ट होता है. अलॉन्ग विद अदर क्लोजेज, अ सिंपल सेंटेंस कंटेन्स ओनली वन क्लोज. सिंपल सेंटेंस के अंदर एक ही क्लोज पाया जाता है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू कंप्लीट थॉट. फॉर एग्जाम्पल, मदर कॉल्ड द फैमिली. ओके, सब्जेक्ट है मदर यहाँ पे एंड कॉल्ड द फैमिली वर्ब है ना, कॉल्ड वर्ब. सो मदर कॉल्ड द फैमिली. The ducklings swam to the other side of the lake. I have been planning to buy a new house. In the above sentences, the verbs are both single word, called or swam, and a group of words have been planning. They are clauses with only one verb. Have been planning. Okay, all this is clause. A dependent clause cannot stand by itself. Dependent clause अपने अंदर ही ओके itself में होता नहीं है. It needs to be combined with an independent. उसको combine होना पड़ता है independent clause को. It needs to be combined with an independent clause to make a full sentence. Full sentence बनने के लिए उसको combine होना पड़ता है independent clause के साथ. Dependent clause दूसरे पे depend करता है. ओके, वो खुद खड़ा नहीं हो सकता. ओके, अपनी जगह पे वो पूरा sentence नहीं बन सकता. Subordinate conjunction plus subject plus verb is equal to incomplete thought. Next on the page 29. We need to have a main clause to make the complete sense. For example, अगर हमें कंप्लीट सेंस बनाना है किसी सेंटेंस का तो हमें मेन क्लोज की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि व्हेन द डकलिंग्स swam they reached their home safely. Connecting two independent clauses. Two independent clauses be joined by using a conjunction. Here are some commonly used coordinating conjunctions. And all of us went to the beach and we agreed it was a lot of fun. And but or nor yet so. Okay, सेंटेंस के हमेशा बीच में होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे को कंबाइन करते हैं कंप्लीट सेंस बनाने के लिए. प्रैक्टिस टाइम 1. Okay, here you have to complete it adding suitable conjunctions. Let's learn types of dependent clauses. Dependent clauses कौन से there are three main types of dependent clauses categorized according to their functions in a sentence. Noun clause, adverb and adjective clause. Noun clause, a noun clause functions as a noun. ये noun clause noun की तरह ही function करता है. It can be subject and object. Okay, ये subject भी होता है और object भी होता है. Subject complement or an object of a preposition. It means start with a WH word like what, who, which, when, where or why. It may even start with that or how. For example, he knows all the ins and outs of this road. Direct object of know. Turn the page. Next. Only worry is that they won't be here in time. Subject complement. A person who is a habitual liar thinks everyone else is lying. I'm highly impressed with this work done at such short notice. Object is a preposition. Within the above sentences, all the highlighted groups of words are noun clauses. Okay, all these highlighted words है ये जो भी है okay ये noun clauses हैं. Adverb clause. An adverb clause is a group of words that functions as an adverb. Okay, adverb clause वो होते हैं, वो group of words होते हैं जो adverb की तरह function करते हैं. जैसे कि adverb clause कौन से हैं? For example, Tina polished the brass vessel until it shone like gold. Okay, all this is an example of adverb clause. In the above sentences, all the highlighted groups of words are adverb clauses. There are different kinds of adverb clauses: manner, time, comparison, place, and reason. Adverb clause of manner answers the question how often the main verb. It tells us how an action is done. An adverb clause of manner usually starts with as if, or as so. For example, adverb clause of manner हमें दिखाते हैं कि कैसे एक्शन हुई. ओके, इट्स टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन. एक्शन को कैसे किया गया, किसी चीज़ को कैसे किया गया. इन द फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन यू मे गो एज यू प्लीज़, है ना. जैसे कि एक्शन है, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है. ओके, तो यहाँ पे बोल रही है कि फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के अंदर यू मे गो एज यू प्लीज़, तुम जैसे चाहते हो वैसे ही जाना. तो हमें ये बताता है, ये सेंटेंस हमें बताता है कि एक्शन को कैसे किया जाए. शी लुक्ड एज इफ शी वे अबाउट टू क्राई. द डॉग लुक्ड एट हिज मास्टर एज सो ही वांटेड टू से समथिंग.
Adverb clause of place is used to modify the verb in the main clause and to tell the place at which an action takes place. Where, as far as near as, wherever or anywhere are some of the subordinating conjunctions that begin the adverb clauses of place. For example, ये adverb clause of place वो होता है जो हमें बताता है कि place के ऊपर action कैसे हुआ. Where, as far as near. जैसे एग्जाम्पल है, she looks perpetually lost wherever I meet her. जब भी मैं उससे मिलता हूँ वो हमेशा लॉस्ट रहती है. ओके, राइट, लाइक दिस इज एन एक्शन, ओके, जो उसने प्लेस के ऊपर किया था. शी लुक्स परपेचुअली लॉस्ट वेर एवर आई मीट हर. जब भी मैं उसे कहीं पे भी मिलता हूँ तो वो लॉस्ट रहती है. ओके, कहीं पे भी मतलब प्लेस की जगह पे है, राइट. तो हमें प्लेस के बारे में बताता है ये एडवर्ब क्लोज. नेक्स्ट, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम. ये टाइम के बारे में बता रहा है. जैसे कि एग्जाम्पल, आफ्टर द मैच एंडेड वी लेफ्ट फॉर अवर होम्स. जैसे ही मैच एंड हुआ हम हमारे घर चले गए, राइट. तो दिस इज प्लेस. दिस इज एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम. Adverb clause of reason is used to modify the verb in the main clause. It tells us the cause or reason why an action take place. कोई भी एक्शन या कोई भी चीज़ कब हुई उसका रीज़न हमें ये बताता है. कौन? एडवर्ब क्लोज ऑफ रीज़न. एडवर्ब क्लोज हमें बताता है रीज़न का. आई लाइक कमिंग टू गोवा इन जुलाई बिकॉज आई लव द मानसून हियर. मुझे गोवा जाना जुलाई के अंदर बहुत पसंद है क्योंकि मुझे वहाँ की बारिश पसंद है. ये हमें रीज़न बता रहा है. Next, adverb clause of comparison tells us about the degree or extent of an action, quality or manner. It answers the question how much or how many. कितना. ओके, adverb clause of comparison हमें बताता है कि कितना हुआ या क्या हुआ. ओके, all this is like example ले लो, she is not so intelligent as for her sister. वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है अपनी सिस्टर के मुकाबले. ओके, तो ये हमें बता रहा है डिग्री ऑफ एक्सटेंट, क्वालिटी और मैनर. हमें मैनर बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है. और हस्बैंड इज़ मच यंगर दैन शी इज़. उसका हस्बैंड काफ़ी छोटा है उससे. एडजेक्टिव क्लोज. कम टू नेक्स्ट. एडजेक्टिव क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. एडजेक्टिव क्लोज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाया जाता है. इट इज़ अ डिपेंडेंट क्लोज विच मॉडिफाइज अ नाउन. एक डिपेंडेंट क्लोज होता है जो कि नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन को और इम्प्रूव करता है. एंड फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, और फंक्शन करता है एडजेक्टिव की तरह. इट यूजुअली बिगिन्स विद अ रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है जैसे कि विच, दैट, हु, हुम और वोज. इट कैन ऑल्सो बिगिन विद अ रिलेटिव एडवर्ब. रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है वेयर, व्हेन और व्हाई. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ अ स्कार्फ मेड ऑफ सिल्क. उसके पास स्कार्फ है जो कि सिल्क से बना है. स्टूडेंट्स हु आर लेजी कैन नेवर डू वेल. जो स्टूडेंट्स लेजी होते हैं वो कभी अच्छा नहीं करते. ऑल दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव क्लोज. इन द अबव सेंटेंसेस ऑल द सॉरी आई मेड अ मिस्टेक. आई हैव टू टर्न द पेज. Okay, here last line. In the above sentences, all the highlighted groups of words are adjective clauses that modify nouns. जो modify करते हैं noun को. All this is highlighted groups of words. ये क्या है? Adjectives है. जो भी highlighted है वो last में adjective clause के अंदर. Next, turn the page. All this is an exercises you have to do. Next, let's learn relative clauses. A relative clause is subordinate clause that modifies a noun or a noun phrase. Relative clause subordinate होता है clause का जो कि modify करता है, जो कि बनाता है noun को या noun के phrase को. आधे अधूरे word को ये बनाता है. जो कि noun होता है उसको ये relative clause complete करता है. It add information about the noun in a sentence by using a relative pronoun. It has a subject and a verb but cannot stand alone, as it functions like adjective by giving more information about a noun. It is something also called an adjective clause. A relative clause begins with a relative pronoun who, that, which, was, where or when. For example, this is the house that was built by my grandfather many years ago. All this is an example of relative clause. In the above sentences, all the highlighted groups of words are relative clauses. Relative clauses are of two types: defining relative clauses, non-defining relative clauses. Next on the page, दो तरह के होते हैं, एक तो डिफाइनिंग रिलेटिव एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज. नेक्स्ट ऑन द पेज, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज. डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज गिव एसेंशियल इन्फॉर्मेशन टू डिफाइन और आइडेंटिफाई द पर्सन और थिंग. डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज वो होते हैं जो कि हमें एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं या किसी चीज़ को हमें बताते हैं या किसी पर्सन के बारे में बताते हैं, राइट. तो हमें एसेंशियल इन्फॉर्मेशन देते हैं, शॉर्ट में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं. डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज. इट कंसिस्ट ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन. इसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है. whom, which, who, whom, which, whoever,
whomever, whichever, or that. A verb and a subject or object of a verb. Commas are not used to separate a defining relative clause from the rest of the sentence. For example, the man who is announcing is the chairman of the school. यह हमें एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कौन? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज. जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स है वो. हु इज अनाउंसिंग? द मैन who is announcing is the chairman of the school. In the above sentences, all the highlighted groups of words are defining relative clause. Non-defining relative clause. A non-defining relative clause is used to provide non-essential but interesting information. ज़रूरी तो नहीं देता ये जो non-defining relative clause है, इस ज़रूरी information नहीं देता, लेकिन interesting information भी देता है. Just like a defining relative clause, the non-defining relative clause also consists of a relative pronoun, a verb, and a subject or object of a verb. Commas are also used to separate a non-defining relative clause from the rest of the sentence. Commas भी इसमें use होता है, जबकि defining relative clause के अंदर commas use नहीं होता. For example, Michael Jackson, comma लग गया, whose middle name was Joseph, was called the king of pop. All this is an example of non-defining relative clause. Next, let's learn conditional clause. Conditional sentences tell us that if a certain condition is true, then a particular result happens. Conditional sentences वो होते हैं जो हमें certain conditions जो सच है वो बताते हैं. In a conditional sentence, one of the clauses lays down the condition called a conditional clause, while the second one gives a result. For example, if you had hurried up little, we would not have missed the show. अगर तुम जल्दी करते थोड़ा सा तो हम शो को मिस्ड नहीं करते. ये हमें कंडीशन के बारे में बताता है कि अगर ऐसा होता तो रिजल्ट कुछ अच्छा होता. देन अ पर्टिकुलर रिजल्ट हैपन्स. ओके, कंडीशन सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि अगर ऐसा किया होता तो ऐसा होता, राइट. तो हमें रिजल्ट के बारे में बताते हैं. आई वुड हैव जॉइंड द आर्मी इफ़ आई हैड हैड द अपॉर्चुनिटी. अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं आर्मी को ज्वाइन करता. Like this, if you do yoga regularly, you will soon know the results. In the above sentences, all the highlighted groups of words are conditional clauses. When the if clauses precedes the main clause, a comma is used after it. Types of conditional clauses. कितने तरह के conditional clauses होते हैं? 4 types of. Conditional type 0, 2, 1 and 3. Conditional type 0 expresses general truths, scientific facts or results. Conditional type 0 express करते हैं एक general truth, एक common ट्रूथ हमें बताते हैं, सच्चाई बताते हैं, या साइंटिफिक फैक्ट्स या रिजल्ट बताते हैं. इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ट्रिम योर हेयर इट ग्रोज फास्टर. अगर आप अपने हेयर को ट्रिम करोगे तो वो जल्दी बढ़ेंगे. इफ़ यू स्टॉप ब्रीथिंग, अगर आप रुक जाओगे तो आप मर जाओगे. इफ़ आई गेट अप अर्ली आई वॉच द सनराइज. तो ये सब क्या है? एक तरह से जो ट्रूथ्स हैं, फैक्ट्स या रिजल्ट से हमें बताते हैं. कंडीशन टाइप 1 इज यूज्ड टू टॉक अबाउट अ पॉसिबल सिचुएशन इफ अ सर्टेन कंडीशन इज मेट. अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, राइट. पॉसिबल सिचुएशंस अगर हम ऐसा करते तो ऐसा होता. तो वो क्या कहलाते हैं? कंडीशनल टाइप 1 में आते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कम होम बिफोर 9 PM आई विल वॉच द मैच. लेकिन और एक चीज़, द एक्शन विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर इफ द रिक्वायर्ड कंडीशन इज फुलफिल्ड बाय दैट टाइम. ओके, ये हमें फ्यूचर के बारे में भी बता रहे होते हैं. जैसे एग्जांपल है, इफ़ आई कम होम बिफोर 9 PM, अगर मैं 9 बजे से पहले आ गया तो मैं मैच देख सकता हूँ. इफ़ आई कम होम बिफोर 9 PM आई विल वॉच द मैच. इफ़ हिज फ्रैक्चर हेल्स क्विकली ही विल प्ले इन द नेक्स्ट मैच. ओके, ये फ्यूचर के बारे में भी बता रहे होते हैं. कौन से? कंडीशनल टाइप 1, कंडीशनल क्लोज. नेक्स्ट, conditional type 2 is used when there is very little or no possibility of condition being fulfilled. Okay, conditional type 2 ऐसा क्लोज है जिसके अंदर पॉसिबिलिटी ही नहीं होती उस कंडीशन को फुलफिल होने के लिए. एग्जाम्पल है, इफ़ आई वेर अ किंग आई वुड लिव इन अ कैसल. अगर मैं राजा होता तो मैं कहाँ पे रहता? कैसल में रहता, है ना, बड़े हवेली में रहता, राइट, दरबार में रहता. सो इफ़ आई ऑन अ गोल्ड माइन आई वुड कवर माई रूफ विद गोल्ड. अगर मेरे पास गोल्ड माइन होती, या जिसको बोलते हैं गोल्ड की जो एक तरह से गोल्ड माइन देखी होगी आपने. इफ़ आई ओन अ गोल्ड माइन आई वुड कवर माई रूफ विद गोल्ड. अगर मेरे पास सोना होता, सोने की भट्टी होती, तो मैं क्या करता? अपने
जो रूफ है उसको कवर कर लेता गोल्ड से, लाइक राइट. सो दिस इज एन नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ कंडीशन, है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो ये सेंटेंसेस हमें बताते हैं कंडीशन के बारे में जो पॉसिबल ही नहीं है. इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय अ प्राइवेट जेट. अगर मैं रिच हो गया तो मैं अपना एक प्राइवेट जेट खरीदूंगा. ऑल दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल टाइप 2 कंडीशनल क्लोजेज. तो ये जितने भी हैं क्लोजेस ये किस में आते हैं, कंडीशनल टाइप 2 के अंदर आते हैं, जिसके अंदर कंडीशन की फुलफिल्ड होने के चांस बहुत कम होते हैं या पॉसिबल ही नहीं होता. कंडीशनल टाइप 3 इज़ यूज टू रेफर टू पास्ट सिचुएशंस. कंडीशनल टाइप 3 के अंदर पास्ट सिचुएशंस के बारे में बताया गया है. इट एक्सप्रेसेस एन इमेजिनरी और सपोज रिजल्ट ऑफ एन इवेंट दैट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस. जो हो गई होती है, पास्ट मतलब पीछे, ओके राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैड वर्कड हार्डर यू वुड हैव पास योर एग्जाम. अगर तुमने अपना वर्क हार्ड किया होता तो तुम एग्जाम में पास हो जाते, लाइक दिस. ओके, ऑल दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ conditional type 3 conditional clauses. Practice time for all this is you have to done. Next, I think your chapter is finished. बाकी जितनी भी है वो सब एक्सरसाइजेज है. ओके, ऑलरेडी मैंने दे दी है. ओके, यू हैव टू कंप्लीट इट, रीड इट एंड लर्न इट.